نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بزرگان دین، نوجوانان ملت، چھوٹے پیارے معصوم بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. انسان کی زندگی کے بہت سارے دن خوشیوں کے ساتھ گزرتے ہیں، تو انسان کو اپنی زندگی میں دکھوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. انسان جب دکھ میں مبتلا ہو جائے، اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں آ جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا انسان تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غم میں مایوس ہو کر بیٹھ جائے، نا امید ہو کر بیٹھ جائے، یا پھر انسان اپنی زندگی میں کوشش کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے معاملات کو کر کے اپنی زندگی کو ایک ایمانی زندگی بنائے؟ میرے بھائیوں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسانی زندگی کے بہت سارے ایسے مرحلے ہیں کہ جہاں انسان مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں ہمیں مایوسی سے، نا امیدی سے روکا گیا ہے. مایوسی، نا امیدی یہ کفر ہے. مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ گمراہ لوگوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں. ضالون کی تفسیر میں اہل علم لکھتے ہیں کہ گمراہ کن کو کہا گیا، کس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں؟ کہا یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھا ہی نہیں، کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو نہیں جانا، کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اگر اپنے رب کا علم رکھ لے، اللہ کی خوبیوں کو جان لے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو جان لے، صفات کو جان لے، تو وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ اپنے کسی بندے کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، پوری کائنات مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے اس خیر کو روک نہیں سکتی ہے. وہ خیر اس انسان تک پہنچ کر کے رہے گا. لیکن ہم اور آپ اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مایوسیاں ہیں. کہاں کہاں انسان مایوس ہوتا ہے؟ نمبر 1، گناہوں کے بارے میں مایوسی.
गुनाहों के बारे में मायूसी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अपने नफ्सों पर जुल्म किया, अपनी जान पर, अपने नफ्स पर जुल्म करना क्या है? गुनाह करना है। क्योंकि इंसान जब बड़े बड़े गुनाह करता है तो अपने आप पर जुल्म करता है। इन गुनाहों के जरिए इंसान अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक ठहराता है कि ये वो जो गुनाह कर रहा है उसके बदले में या तो अल्लाह उसकी दुनिया में पकड़ कर लेगा, नहीं तो आखिरत में उसकी पकड़ होनी है। अल्लाह ताला कहता है, आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, जिनसे बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। इसमें एक पैगाम है। हम और आप देखते हैं कि हमारे कई भाई जिनकी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुनाहों में गुजर गया। पता चला कोई भाई है 30-40 साल तक उसने नमाज ही नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है, कभी जुमा में हाजिरी दे दी, कभी ईद में हाजिरी दे दी, लेकिन जिंदगियों में नेकियों से बहुत दूर है, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है। और भी कई लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुलविस है, कोई जिनाकारी में, कोई बदकारी में, कोई उससे भी भयानक जुर्म के अंदर गिरफ्तार है और उन गुनाहों को अंजाम दे रहा है। अब दिल में यह ख्याल आता है, अरे जिंदगी के 30-40-50 साल अब तो मैंने गुनाहों से गुजार दिए, क्या अब मेरी माफी हो सकती है? क्या अब मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? और एक ऐसा इंसान कि जिसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुनाहों के अंदर गुजरा है, कभी नेकी के बारे में सोचता भी है। जैसे एक इंसान 30-40 साल जिंदगी के गुजर गए, कभी नमाज नहीं पढ़ी, अब वो मस्जिद आना भी चाहता है तो एक मायूसी सी है, एक नाउम्मीदी सी है कि अभी मैं मस्जिद में जाऊंगा अभी मस्जिद में, ये मेरे मोहल्ले की मस्जिद है, ये मेरे एरिया की मस्जिद है, अभी मैं दाखिल होऊंगा तो शायद ये मुसल्ली मेरे देख करके कहेंगे, क्या भाई रास्ता तो नहीं भूल गए, ये चांद किधर से निकल आया? एक मायूसी, एक नाउम्मीदी कि लोग क्या कहेंगे, क्या ताना देंगे, कह रहे भाई ये आदमी भटक तो नहीं गया। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंसान की अपनी जिंदगी में है कि इंसान मायूस हो जाता है। उसने रब के बारे में पढ़ा नहीं, रब के बारे में जाना नहीं, वो सोचता है अब ये मेरे गुनाह माफ होने वाले नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिस बंदे को तौफीक दे, आज तक हमारी जिंदगी में जो कुछ हुआ हम उसे भूल जाए, जो गुनाह हुए उस पर हम तौबा कर ले, हम माफी मांग ले, अपने रब को मना ले, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। इंसान अपनी उस गुनाहों की जिंदगी और गुनाहों वाली जिंदगी छोड़ करके नेकियों वाली जिंदगी के अंदर आ जाए, अपने रब को मना ले। अल्लाह ने कहा है मैं तुम्हारे गुनाह को माफ करूंगा। समाज मुआशरा क्या कहता है, इनका काम है कहना, लेकिन तुम अपने रब को मना लो। पहली ये बात कि पहला ये मरहला इंसान की जिंदगी में कि जहां इंसान गुनाहों के बारे में मायूस हो जाता है। नंबर 2 मेरे भाइयों, जहां इंसान मायूस नजर आता है, नाउम्मीद हो जाता है, वो जिंदगी का दूसरा मरहला क्या है? रिज्क का मामला, रोजी रोटी का मामला। आज ये मामला भी कोई छोटा नहीं है। हम और आप देखते हैं कि कई बच्चे उन्होंने पढ़ाई की, बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले ली, आज अपने सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, कभी यहां पर दिया, कभी वहां दिया, कभी इस कंपनी में दिया, कभी वहां दिया, लेकिन मायूसी है। आते हैं कोई जवाब नहीं आता है, मायूसी मिलती है, सामने से इनकार कर दिया जाता है, पता चला बैठे हुए हैं, मायूसी है। कई लोग हैं कारोबार शुरू किया, उन्होंने तिजारत शुरू की, लेकिन लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यह इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। यहां तक कि इंसान रिस्क के मामले में, माल दौलत के मामले में कहते हैं जब मायूस होता है तो आप अखबारात आप देखें और आप जो न्यूज आती है आप वो सुने। आज का ये दौर जो है आप देखें, मुख्तलिफ जराए से पता चला कि फला साहब किसी कंपनी के मालिक है, 3000 करोड़ 4000 करोड़ के मालिक है, कहते हैं उनको 1 करोड़ का नुकसान हुआ, उन्होंने सुसाइड कर लिया।
सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। यानी कि एक इंसान बावजूद ये कि उसके पास कई हजार करोड़ है और एक मामूली सा उसके लिए 1-2 करोड़ का वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और यही इंसान की जिंदगी में हम देखते हैं कि इंसान रोजी रोटी के मामले में जब परेशान होता है, मायूस होता है, तो वो खुदकशी तक पहुंच जाता है, और ना पहुंचे तो अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेता है। पता चला कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्या रिस्क के मामले में मायूस हो जाना चाहिए, ना उम्मीद हो जाना चाहिए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम में जो हमारी रहनुमाई की गई है, इंसान उस पर गौर करे। कुरान करीम क्या कहता है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दूसरी जगह फरमाया इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। रोजी रोटी का मामला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने दुनिया की तमाम मखलूकात का रिस्क लिखा है। अल्लाह किसी को कम देता है, किसी को ज्यादा देता है, लेकिन आज जो रोजी रोटी के मामले में जो लोग मायूस है और जो लोग दौलत कमाने के सिलसिले में मायूस है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, प्यारे नबी ने तो यह भी कहा उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम। दुनियावी एतबार से जो तुमसे कम है तुम उनको देख लिया करो। अम्मा आयशा कहती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी महीनों चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था, कोई खाना नहीं पकाया जाता था। कभी पड़ोसी आता और पता चला कुछ दूध दे गया, कुछ और दे गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था, महीनों तक का यह आलम होता था। आज हमारा ऐसा कौन सा भाई है, कौन हम में से ऐसा है कि जिसको 2 वक्त की रोजी रोटी मैसर नहीं है? अल्लाह ने जितना दिया है उस पर खुश होना सीख लीजिए। खुश होना, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाइए और इंसान मेहनत करे, मेहनत करे, अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी के अंदर जिद्दोजहद कोशिश करे। रिस्क का बढ़ाना और रिस्क का घटाना ये मेरे भाइयों अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मायूस नहीं होना है। नंबर 3, इंसान जो अपनी जिंदगी में मायूस होता है, ये एक मरहला उन लोगों के लिए है जिनकी शादियां हो गई और अब शादी हो जाने के बाद उनके यहां अगर औलाद ना हो तो देखा जाता है कि बहुत सारे भाई मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। आप इसको अगर समझना चाहे तो आप देखें कि हमने अपना समाज और माशरा बनाया कैसा है। पता चला किसी की शादी हो गई, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ कि अभी हाँ भाई कोई गुड न्यूज है, कोई अच्छी खबर है। पता चला 1 साल अभी हुआ, कोई अच्छी खबर नहीं है। या तो बच्ची जिस घर के अंदर गई हुई है, पता चला कि उस घर की में रहने वाली औरतें, वो सास या जो भी है, वो उस बच्ची को तकलीफ देगी। या फिर जो बच्चा है जिसकी शादी हुई है, जिसके यहां औलाद नहीं है, उस पर तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। औलाद का मामला, कई लोग मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि लोगों जान लो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश। अल्लाह ने माल में और औलाद में आजमाइश रखी है। अल्लाह किसी को औलाद देकर आजमाता है और किसी को औलाद ना देकर आजमाता है। औलाद का देना ना देना ये अल्लाह ताला के हाथ में है, इसमें आजमाइश रखी है। लेकिन क्या इंसान मायूस हो जाए? आज हम देखते हैं कि 1-2 साल में औलाद का न होना, सिर्फ इसी की बुनियाद पर बात तलाक तक पहुंच जाती है, रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये मुकद्दस बंधन, निकाह का ये मुकद्दस रिश्ता, इसको खत्म कर देते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि औलाद नहीं होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कोई रीजन नहीं, ये कोई बुनियाद नहीं है जिस पर रिश्ते खत्म किए जाए। ये चीजें अल्लाह के हाथ में है। औलाद का देना ना देना ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमको मांगना है अल्लाह से, वैसे मांगना है जैसे अंबिया किराम मांगते थे। आज औलाद की ख्वाहिश सबको है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम अल्लाह से वैसे मांगते नहीं है जैसे नबियों ने मांगा, अंबिया ने मांगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में जकरिया अलैहिस्सलाम की वो बात नकल फरमाता है। जकरिया अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िया। ए मेरे रब,
मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, हड्डियां कमजोर हो चुकी है, वस्ताल रास शैबा, और बालों में सफेदी आ चुकी है। एक तरफ हड्डियां कमजोर है, बालों में सफेदी आ गई है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, लेकिन ऐ मेरे रब, तुझसे मांग कर कभी मैं महरूम नहीं रहा, महरूम नहीं रहा, तुझसे मांग कर कभी मैं थका नहीं। आज हम में से कितने हैं, हम पर बहुत सारे बुरे हालात आते हैं, मैं कहता हूं क्या हम मांगते हैं रब से? क्या रब के आगे गिड़गिड़ाते हैं? और आज एक मुसलमानों का अपनी एक जो सोच बन गई है कि जो भी हालात आए, इन हालात से निकलने का एक हल, मुसलमानों के जो उमूमी मसाले हैं, आज उस पर मैं आपसे इस बीच में रोक कर कहना चाहता हूं। आज हमने क्या सोच बना ली है? सोच ये बना ली है, उसके आने से और उसके जाने से अच्छे दिन आएंगे। ये मुसलमान है, ये पार्टी आएगी और ये पार्टी जाएगी, ये आएगी और ये जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। अरे अच्छे दिन तुम्हारी नेकियों से आएंगे, तुम्हारे अपने आप को बदलने से आएंगे। तुम खुद बदलना नहीं चाहते हो, तुम्हारे हालात कभी अच्छे नहीं होंगे। कभी किसी पार्टी के आने और जाने से हालात नहीं बदलते हैं। तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या है? तो ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं कभी मांगकर महरूम नहीं रहा, थका नहीं। इंसान के अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि अपने रब से वो मांगता रहे। ये तीसरी बात मेरे भाइयों। चौथा, इंसान की जिंदगी का मरहला जहां वो मायूस होता है, वो मरहला बीमारी का मरहला है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे इंसान गुजरता है कि यहां तक कि वो बीमारियां ऐसी होती है कि अगर उस बीमार को डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो कहते हैं कि बीमार को डॉक्टर कहीं बाहर बिठा देता है और उसकी औलादों को बुलाता है, कहते हैं देखो अब्बा को ऐसी ऐसी बीमारी है, आप उनको बताना मत, आपने बता दिया तो समझिए बस वो आधा बीमारी का नाम सुनकर खत्म हो जाएंगे। ऐसा होता है। इंसान को कुछ ऐसी बीमारियां लगती, कोई कैंसर के अंदर मुब्तला है, कोई कैंसर में मुब्तला हो गया, या किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ऐसी बीमारियां अल्लाह की तरफ से है। इंसान ये सोचता है कि अब इन बीमारियों से निकल नहीं पाएगा, या बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जिस पर इंसान मौत की तमन्ना करता है। और कभी कभी कुछ बीमारियां इतनी बढ़ जाती है कि हम और आप देखते हैं कि एक इंसान 5 साल 10 साल से अपने बिस्तर पर है, यहां तक कि उनकी औलादे, उनके बच्चे आते हैं, उलमा के पास आते हैं, पूछते हैं उलमा किराम, और बेटा क्या है, तुम्हारे अब्बा का हाल कैसा है? अरे मौलाना दुआ करो, अल्लाह ताला उठा ले तो अच्छा है। क्या कहते हैं? उठा ले तो अच्छा है। यानी बाप की मौत की तमन्ना करते, बस ऐसे ही पड़े हैं। कोई एक बात ये समझे कि बीमारियों से निजात देने वाली जात अल्लाह ताला की है। इंसान को हमने अपनी जिंदगी में कई लोगों को देखा जो ब्रेन हेमरेज जिनको हुआ, 3-3, 4-4 साल तक बिस्तरों पर पड़े थे। जब अल्लाह ने उनके मुकद्दर में शिफा लिखी थी, उनकी सेहत लिखी थी, वो बिस्तरों से ऐसे उठे कि कोई कह नहीं सकता कि ये इंसान 3-4 साल से इस तरीके से बीमारी में गिरफ्तार था। लेकिन आज इंसान बीमारियों का सुन करके हौसला हार जाता है। अभी हममें से ही किसी को यह कह दे कि आपको फला बीमारी हो गई है, जैसे ही बीमारी का आपने सुन लिया कि कोई बड़ी बीमारी है, सुनते ही सब बंद। कारोबार कर रहे थे, कारोबार बंद, कमा करके क्या करूंगा, डॉक्टर ने बोल दिया 4-5 महीने में जाने वाला। बच्चों के साथ हंसी खुशी से जिंदगी गुजरती थी, अब बच्चों के साथ भी बेटा कुछ दिन का मेहमान। घर में मायूसी, कारोबार के मुतालिक मायूसी, इंसान बैठा हुआ है, सब कुछ खत्म। जो जिंदगी उसकी थी, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, सिर्फ इस बात पर कि अब मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को आप याद रखें, जो सही मुस्लिम और दिगर हदीस की किताबों में मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुमुल मौत लिजुर्रिन नज़ला बिही, तुम में से कोई भी आदमी अपने ऊपर आई हुई मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना ना करे। इंसान पर कितनी ही बड़ी मुसीबत आई हो,
कितनी ही बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हो, उसके हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन उसे मौत की तमन्ना नहीं करना है। प्यारे नबी कहते हैं मौत की तमन्ना ना करो, बल्कि उसके बदले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। तुम्हें ये दुआ पढ़नी है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली। इंसान यूं ही मौत की तमन्ना कर ले कि अल्लाह बहुत परेशान हो, अब उठा ले, मर जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, रुखसत हो जाऊं। कहा नहीं, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली। अल्लाह ताला तो मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक के मेरी जिंदगी में खैर है, भलाई है। वो तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। और तो मुझे मौत उस वक्त देना जबकि मेरे मौत के अंदर भी अल्लाह तुम्हें खैर रखा। इंसान अपनी जिंदगी और मौत को खैर से देखता है, भलाई से देखता है। आज हम बड़ी बड़ी बीमारी में आ गए और हम सोचते मौत की तमन्ना कर ले, अचानक अल्लाह की पकड़ आ जाए, इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए, उसे तौबा करने का मौका ना मिले, गुनाहों से माफी का उसको मौका ना मिले। इंसान सोचे क्या हालत होगी। या इंसान जो ही मौत की तमन्ना कर रहा है, अरे ये जिंदगी जो अल्लाह ताला ने दी है मायूसी से नहीं, नेकियों के अंदर गुजारो। इंसान जितना डिप्रेशन में जाता है, जितना सोचता है, जितना टेंशन लेता है, उतना अपने आप को तबाह करता है। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हवाले कर देना, ये चौथा मरहला इंसान की जिंदगी का जहां वो मायूस नजर आता है। नंबर 5 मेरे भाइयों, पांचवा मरहला इंसान की जिंदगी का जहां वो मायूस नजर आता है, वो है हिदायत का मामला। हिदायत, आप इसको इस तरह से समझें कि कुछ भाई हमारे ऐसे हैं, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाया, उन्हें तौहीद पर कायम रखा, शिर्क बिदआत खुराफात से अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। बहुत सारे घरों में यह होता है कि कुछ भाई ऐसे हैं जो कुरान हदीस पर कायम है, कुछ भाई ऐसे हैं जो तौहीद पर कायम है, शिर्क से दूर है, लेकिन उनके घर में ही उनके बच्चे हैं या घर ही का कोई फर्द है, कोई रिश्तेदार है, पता चला कि वो सही रास्ते पर नहीं है। अब होता क्या है, हम समझाते हैं भाई ये चीज मान लो, ये चीज सही है, आप ये करो, फला चीज ना करो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शख्स जिसको बहुत समझाया गया हो, बहुत उसको दीन की बात पहुंचाई गई हो, तो बाद में आकर उलमा से कहते हैं अरे मौलाना छोड़ दो इन लोगों को समझाना, छोड़ दो इन लोगों को समझाना, ये अब सुधरने वाले नहीं है, इनको हिदायत मिलने वाली नहीं है। यहां ये बात याद रखना जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसके ऊपर गौर करें। किसी की भी हिदायत के बारे में मायूस नहीं होना है। हमारा कोई अपना भाई, कोई अपना रिश्तेदार, कोई अपना करीबी, कोई दोस्त, कोई यार, कोई ऐसा शख्स कि जो सही रास्ते पर नहीं है, लेकिन मायूस ना हो, उसके लिए दुआ करो। अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह जैसे तुमने हमें हिदायत अता फरमाई, तूने हमको दीन पर कायम रखा है, हमारे इस भाई को भी हिदायत अता फरमा, इस भाई को भी तू नेकियों की तौफीक दे। आप ये देखिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, इनकी वफात का वक्त करीब आया। लम्मा हज़रत अबा तालिब की वफात जाअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु अबू जहल व अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया। अबू तालिब की वफात का वक्त करीब है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। प्यारे नबी आए तो देखा कि सामने अबू जहल भी बैठा हुआ है और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया दोनों बैठे हुए हैं। और प्यारे नबी भी पहुंचे और जाने के बाद अपने चचा से कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा उहज्जु लक बिहा इंदल्लाह। ए मेरे चचा, आप कलमा पढ़ लीजिए, इस कलिमा को मैं हुज्जत दलील बना करके अपने रब के सामने पेश करूंगा। नबी चाहते थे कि मेरे चचा ईमान ले आए, बात रख रहे हैं। सामने अबू जहल, अब्दुल्लाह बिन उमैया दोनों बैठे हुए हैं। एक तरफ नबी कहते हैं चचा कलमा पढ़ लो, दूसरी तरफ ये कहते हैं अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब। अरे अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे,
बाप दादा का दीन छोड़ दोगे। आज कई लोग जो हक कबूल नहीं करते हैं, हक तस्लीम नहीं करते हैं, उसकी वजह यह है कि वो अपने बाप दादा को देखते हैं। नहीं, हमारे बाप दादा ये नहीं मानते तो हम भी नहीं मानेंगे। तो अबू जहल ने कहा अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अरे अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे। प्यारे नबी इधर से बतलाते हैं, इधर से अबू जहल रोकता है। नतीजा क्या हुआ कि अबू तालिब को हिदायत नहीं मिली, ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। अब आप सुनिए, आप दो लोग रोकने वाले थे अबू तालिब को ईमान लाने से, एक अबू जहल और एक अब्दुल्ला बिन अबी उमैया। अल्लाह ताला ने बाद में अब्दुल्ला बिन अबी उमैया को हिदायत दे दी। अब्दुल्ला बिन अबी उमैया को इस हदीस में क्या पैगाम है कि जो लोग हक की राह में रुकावट बनते हैं, जो आज हक के रास्ते में तुम्हारे दुश्मन हैं, अल्लाह जब हिदायत देने पर आ जाए तो अल्लाह उनको भी हिदायत देता है। अब्दुल्ला अबू जहल को हिदायत नहीं मिली, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमैया अबू तालिब को रोकने वालों में से थे और उनको बाद में अल्लाह ने हिदायत दे दी। बल्कि आप ये भी सुनते जाएं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों का नाम लेकर बद्दुआ की थी। 3 लोगों का नाम लेकर बद्दुआ की, सफवान बिन उमैया, हारिस बिन हिशाम, सुहेल बिन अम्र। 3 लोगों का नाम लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। आप तारीख के सफात उठा करके देखिए, अल्लाह ताला ने तीनों को बाद में हिदायत दी। बद्दुआ